Okay, good evening, everyone. Okay, good evening. So, today we will start a lecture number 2 of periodic classification. Okay, so today I will cover fifth point important physical properties of periodic table, atomic size, ionization energy, electron affinity, electronegativity, metallic character, and non metallic character. If time is left, I'll cover the sixth topic also. Okay, is my copy visible to you? Is my copy visible to you? Yes, sir. Okay. Today, no network issue, isn't it? So, we should revise the last lecture. You should know valency. Okay, what is valency? Study, I've told you the number of electron that is gained, or you can say shared or loosed during chemical reaction. That is called as valency, isn't it? Already I given you to take out valency from element 1 to element 20. That is from hydrogen to the calcium. I hope there is no doubt between them how to take out valency. हाँ, नो डाउट। ये जो मैंने प्रोसेस बताया था ना कि जैसे कैल्शियम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882 ओके। तो जिस डिटेल में से मैं बताया था उसका आगे काम इस वजह से होता है डिटेल में बताया था, लेकिन आप लोग शॉर्ट में कर दिए थे, कोई बात नहीं। तो अगर कैल्शियम के पास दो इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में, इसमें कुछ बच्चों को डाउट आता होगा कि ये डुप्लेट रूल क्यों नहीं फॉलो कर लेगा। क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन डुप्लेट रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। Okay, duplet rule is only applicable for hydrogen and helium. In case of other elements, they must have to follow octet rule. Octet rule means 8 electron in their outermost shell. So calcium एक metal है, और मैंने ये बता रखा है कि metal की property क्या होती है, they can lose the electron. Okay, so calcium is a metal, it will lose electron. How much electron it will lose? To become stable, how much electron it will lose? 2 2 Okay, 2 electron it will lose, and it will, how much charge it will get? plus 2 मतलब 2 Okay, it will get plus 2 charge. Here the valency of calcium will be 288. So it's stable. ये charge क्यों आया? What is the reason behind this? Aditya, okay. Good evening. Don't write hello, okay? First you study, at last you can chat. Okay, so what is the reason why this Ca plus 2 is stable, and what is the reason of this charge? This charge exists. क्योंकि वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है इसलिए। वो तो मुझे भी दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके ऊपर चार्ज आ गया, क्यों आया? मैंने उसका रीजन पिछले क्लास में दिया था। इस केस में उसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है और 20 प्रोटॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन प्रोटॉन का नंबर नहीं चेंज होगा। और प्रोटॉन का नंबर नहीं चेंज होने की वजह से इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा, इसी वजह से कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, ओके। ओके, let's begin periodic properties. First, I'll discuss the atomic radius. We even call it as a atomic size. So, any idea with respect to, okay, Surya has raised hand. Okay, tell what is the वैलेंसी problem? नहीं, वो वैलेंसी को लेके एक वो था, डाउट था। हाँ, पूछो पूछो।
ये हम लोग की बुक में जो क्वेश्चन नंबर 14 दिया है इंडेक्स क्वेश्चन वाले में, उसका सेकंड पार्ट में प्रॉब्लम था, उसका Okay, आंसर। that I will discuss in the last. Please wait. ओके। All questions I will discuss. Okay, any idea about atomic radius or atomic size? रेडियस तो पता है क्या होता है? What is radius? हाफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर Yeah. टू आउटर, हाफ ऑफ डायमीटर। Okay, radius is half of diameter. Okay, good, good. So atomic radius means, please write along with me, okay? Atomic radius means the shortest distance between center of nucleus and valence cell. एक एग्जांपल लेंगे. In case of sodium, this is nucleus, electronic configuration 281. इसके पास कितने सेल होंगे? 3। 3 cells. Okay. This is the nucleus with 3 cells. एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, प्लीज रिमेंबर दिस. आई थिंक इन 9th में बताया गया होगा. दिस आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज ऑल्सो वैलेंस सेल. इवन दिस सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्टीमेट सेल. सेल के अंदर जो सेल रहता है उसको पेनल्टीमेट, और जो था उसको पर पेनल्टीमेट. ओके, ये सेल्स के नाम है, ये याद कर लीजिए. जो आउटर मोस्ट सेल होगा वो अल्टीमेट सेल, उसके अंदर वाला पेनल्टीमेट, उसके भी अंदर अगर सेल है तो पर पेनल्टीमेट. किसी का डाउट आ गया, चौथा सेल है तो उसको नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस बोलते हैं. ठीक है, तो ये एटॉमिक रेडियस क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल. सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, टू द वैलेंस सेल. वैलेंस सेल मींस आउटर मोस्ट सेल. तो ये जो डिस्टेंस होगा, दिस इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस. ओके, the shortest distance between center of nucleus and the valence cell is called as atomic size, or you can say atomic radius. एक कंडीशन अप्लाइड है, इट विल बी एग्जिस्टिंग इन आइसोलेटेड फॉर्म. आइसोलेटेड एटम का मतलब किसी को पता है? व्हाट इज आइसोलेटेड एटम? एनी आइडिया? आइसोलेटेड एटम मींस अकेला. ठीक है, कोई एटम अकेला तो उसी को आइसोलेटेड एटम या फिर उसका आइसोलेटेड फॉर्म बोलते हैं. तो जो एटॉमिक रेडियस होता है इसके डिफिनेशन में ऐड करेगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल इन एन आइसोलेटेड एटम. In an isolated atom is called as atomic radius. The shortest distance between center of nucleus and valence cell in an isolated atom is called as atomic radius or atomic size. क्या कोई एटम आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Please give me response so that I can continue. क्या कोई एटम आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? आइसोलेटेड मींस अकेला. हाँ। कौन से एलिमेंट? हाइड्रोजन का।
So actually atom do not exist in isolated form. Okay. Atom do not exist in isolated form except noble gas. Remember this statement, atom do not exist in isolated form except noble gas. नोबल गैस को छोड़ के बाकी जितने भी एटम्स हैं वो अकेला नहीं रहते हैं, ठीक है, उनके साथ हमेशा कोई ना कोई एलिमेंट बॉन्ड बनाए रहता है या फिर वो खुद से ही बॉन्ड बनाए रहते हैं। कोई भी एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। ये आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेटेड फॉर्म एक्सेप्ट नोबल गैस। तो ठीक है, तो जब एटम ही आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है तो क्या उसका रेडियस निकालना पॉसिबल होगा? नहीं। डिफिनेशन तो ये कह रहा था ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल इन एन आइसोलेटेड एटम। लेकिन जब आइसोलेटेड एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो क्या उसका रेडियस निकालना पॉसिबल होगा? नॉट पॉसिबल। अगर नॉट पॉसिबल है तो हम रेडियस निकालेंगे कैसे? अब ये क्वेश्चन बनता है। अगर रेडियस निकालना नहीं पॉसिबल है देन हाउ वी कैन फाइंड आउट द रेडियस? है एक तो मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, व्हाई वी कैन नॉट फाइंड एटॉमिक रेडियस। इसका आंसर मैंने दे दिया, एटम डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेटेड फॉर्म। जब एटम ही नहीं आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता तो रेडियस निकालना कैसे पॉसिबल होगा? सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, देन हाउ वी कैन फाइंड आउट एटॉमिक रेडियस? एनी आइडिया? यार सब बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, पढ़ रखा है। देन हाउ वी कैन फाइंड आउट द एटॉमिक रेडियस? measuring the आगे आगे। measuring the distance between डिस्टेंस बिटवीन किसका? स्क्वायर का मेजर डिस्टेंस कर ले। कंप्लीट करो स्टेटमेंट। हैंड रेस तो की हो, बोलो। hello हाँ बोलो। Okay, leave it. I'm telling them how we can find out atomic radius. So to find out atomic radius, no, we have to go in the bond state, bonded state. Okay. बॉन्डेड स्टेट अभी तो सारे लोग को पता होगा, तीन बॉन्ड होते हैं, डेट इज आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, और भी कई सारे बॉन्ड हैं, आपके सिलेबस में इतना ही है। तो क्वेश्चन पूछे देन हाउ वी कैन फाइंड आउट एटॉमिक रेडियस इफ एटॉमिक रेडियस इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड इन द आइसोलेटेड फॉर्म। तो इसका सिंपल सा आंसर है, जब एटम्स बॉन्ड बनाएंगे उस समय हम उनका एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस कैलकुलेशन विल कम इन 11th क्लास। You just now try to understand then how we can find out atomic radius. So when elements will go in their bonded form, then we can find out the atomic radius. Okay. क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ। ओके। नेक्स्ट हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक साइज को अफेक्ट करेंगे? लेट्स सी। फर्स्ट, नंबर ऑफ शेल्स। मैंने आपको शेल बताया था, व्हाट इज सेल?
सर्कुलर पाथ। Okay. Electron is revolving around the nucleus in a circular path. That circular path is called as shell. सेल Okay. और ऑर्बिट। So how from a logical mind you can think, अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर इसमें एडिशन ऑफ सेल्स हो रहा है, तो अगर एडिशन ऑफ सेल्स हो रहे हैं तो साइज विल इंक्रीज और डिक्रीज। अगर एडिशंस ऑफ शेल हो रहे हैं तो इंक्रीज। साइज विल इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, साइज विल इंक्रीज। ये तो सिंपल सा लॉजिक माइंड। अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, तो अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है, न्यूक्लियर फोर्स तो पता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स। तो जो फोर्स न्यूक्लियस लगाता है और अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो वो फोर्स धीरे धीरे कम हो जाएगा और जो साइज होगी वो एक्सपैंड हो जाएगी, इस वजह से साइज बड़ी हो जाएगी। ठीक है, पहला रीजन ये था कि न्यूक्लियर फोर्स कम होगा इसीलिए साइज बढ़ेगी। ठीक है, क्यों न्यूक्लियर फोर्स कम होगा? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रहे हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, सेकेंड फैक्टर जो अफेक्ट करेगा दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मैं कल बता रहा था, दैट इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में दो पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। तो न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज होता है? नहीं। नहीं। मैंने उस दिन इसीलिए फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, इसलिए मैं उस दिन सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी बता दिया था कि आगे काम है। तो न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वही चार्ज ऑन द न्यूक्लियस होगा। तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो भी साइज को अफेक्ट करता है। अभी मैंने आपको यहाँ बताया, जो न्यूक्लियर चार्ज है अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है मतलब न्यूक्लियर फोर्स, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा? रिस्पॉन्स चाइल्ड, दिस इज क्लास 9th सिलेबस। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर फोर्स भी बढ़े, और अगर न्यूक्लियर फोर्स बढ़ा तो मैंने ऊपर बता रखा है जो साइज क्या होगी, कम होगी। कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन न्यूक्लियस। चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या होता है? जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है वही चार्ज ऑन न्यूक्लियस होता है ना। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर फोर्स भी बढ़ेगा। अगर नहीं पता अभी तक तो याद कर लो, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर फोर्स भी बढ़ेगा, और अगर न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा तो जो साइज होगी वो घटेगी। डिक्रीज होगी। क्यों घटेगी? क्योंकि अगर ये न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होंगे उनका अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, और जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगी? साइज कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जब साइज कॉन्ट्रैक्ट होगी तो मतलब साइज कम होगी। ये क्लियर हुआ? इस केस में साइज एक्सपैंड हो रही थी। क्यों एक्सपैंड हो रही थी? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स वहां पे बढ़ रहे थे। अब आप ये कहोगे नंबर ऑफ शेल कैसे बढ़ रहे थे? नंबर ऑफ शेल इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड होते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। तो लेकिन आप अब आपके दिमाग में मे भी क्वेश्चन आया होगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेनली क्वेश्चन आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो प्रोटॉन, तो अगर प्रोटॉन बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर फोर्स भी बढ़ रहा होगा। लेकिन आप लोग के पास आई थिंक कोई क्वेश्चन आया नहीं, फोर्स भी बढ़ रहा होगा। आप लोगों ने ये ही नहीं पूछा कि दोनों बढ़ रहे हैं क्यों इसका इफेक्ट जा। आवाज नहीं आपकी सही से आ रही। दिस इज टाइम यूज योर माइंड, ओके, जस्ट लर्निंग कॉन्सेप्ट इज नॉट ओके। तो जो यहाँ इस केस में क्या हो रहा था ना, जो नंबर ऑफ शेल्स थे ये न्यूक्लियर जो फोर्स है इस पे एक्स्ट्रा इफेक्ट डाल दिया था, इस वजह से यहाँ साइज एक्सपैंड हो रही थी। और इस केस में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ रहा है और साइज घट रही है। इस केस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसी वजह से साइज डिक्रीज हो रही है। ये आगे मैं जब ट्रेंड बताने जा रहा हूँ उसमें बहुत काम आएगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ?
हाँ या ना? यस। श्वेता, आदित्य, प्लीज रिस्पॉन्स मी। यस, यस, ओके। क्लियर है तो ठीक है, नहीं क्लियर होगा तो बताइएगा, अगेन आई विल डिस्कस। नेक्स्ट हेडिंग, ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज। Sorry, one more time. थोड़ा डाउट है। डाउट क्या है ये बताओ मुझे, क्या नहीं समझ में आया? अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रखा है तो बीच में क्वेश्चन क्या बोले थे? एक्चुअली मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन बोला था, ठीक है? स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन बोले। जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे वो क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन आप लोग को वो क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं जस्ट वही बोल रहा था, ठीक है? अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो घट रहा है ना? तो न्यूक्लियर फोर्स जब हाँ। घट रहा है तो साइज एक्सपैंड हो जा रही है। मैंने ये आपको बताया, लेकिन स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आना चाहिए कि जो नंबर ऑफ शेल है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से बढ़ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है प्रोटॉन बढ़ रहा हो, क्योंकि वो दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर प्रोटॉन बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर फोर्स भी बढ़ना चाहिए। लेकिन क्यों इसका इफेक्ट कम आ रहा है और इसका इफेक्ट ज्यादा आ रहा है और साइज एक्सपैंड हो जा रही है? ये क्वेश्चन स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया आप लोग के दिमाग में। थोड़ा सा स्लो है, वर्क करिए। ओके, ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज। We have to go little fast. Okay, trends in atomic size down the group. कोई डाउट होगा देन एट लास्ट यू कैन आस्क। तो दो फैक्टर्स मैंने बताए, नंबर ऑफ शेल्स और न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, दो फैक्टर मैंने बताया, नंबर ऑफ शेल और न्यूक्लियर चार्ज। अब ये बताइए, आप डाउन द ग्रुप मींस टॉप से बॉटम में। पीरियोडिक टेबल लेके बैठिएगा। जब आप टॉप से बॉटम में जा रहे हैं तो जो साइज होगी वो बढ़ेगी। इसका रीजन हम आप लोग मुझे देंगे, क्यों साइज बढ़ेगी? मैंने कॉन्सेप्ट बताया, डाउन द ग्रुप, जब आप जाओगे मतलब टॉप से बॉटम में आप जब जाओगे तो जो साइज होगी वो इंक्रीज होगी। इसका रीजन क्या है? नंबर ऑफ मैंने अभी सेल्स आप लोग को बढ़ेंगे। फैक्टर्स बताया है। हाँ, इसका रीजन ये था कि नंबर ऑफ शेल्स जो है दैट विल इंक्रीज। जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो साइज बढ़ेगी। ओके, सेकेंड, अक्रॉस अ पीरियड। अक्रॉस अ पीरियड मींस लेफ्ट से राइट। अगर आप लेफ्ट से राइट में जाओगे, ठीक है, अगर आप लेफ्ट से राइट में जाओगे तो जो साइज है वो बढ़ेगी या घटेगी? अब ये बताइए। डिक्रीज। ओके, साइज विल डिक्रीज। क्यों? न्यूक्लियर रीजन? चार्ज। यस, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि अभी मैं इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन देता हूं, जस्ट वेट। बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। एलिमेंट्स लेते हैं हम पीरियड नंबर 3 के लेते हैं। ओके, पीरियड नंबर 3 को क्या कहते हैं? पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? टिपिकल एलिमेंट्स।
ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था. लर्न द नोट्स प्रॉपरली चिल्ड्रन. तो पीरियड 3 को टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं. इनके एलिमेंट्स का क्या है? सोडियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन. ठीक है. मैं तो आप सोडियम का एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, 282. आई होप आप लोग अपने कॉपी में लिख लिए होगे. 285. इसके आगे भी अभी देखेंगे. इसका ये बताओ, जो नंबर ऑफ शेयर्स है कांस्टेंट है, ये बताओ. कांस्टेंट है. नंबर ऑफ शेयर्स कांस्टेंट है. इसमें भी आपको दिख रहा होगा 3 सेल है, इसमें भी दिख रहा होगा 3 सेल है, इसमें दिख रहा 3 सेल, इसमें 3 सेल है. तो जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ ही नहीं रहे हैं, लेकिन नंबर, इस केस में 11 प्रोटॉन थे, इस केस में 12 प्रोटॉन, 13 प्रोटॉन, इसमें 14 प्रोटॉन, इसमें 15. मतलब ऐसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं. ठीक है. लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कांस्टेंट है. मतलब न्यूक्लियर चार्ज का ज्यादा है. अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज क्या होगी? अगर न्यूक्लियर चार्ज है तो साइज क्या होगी? साइज जो है वो आपकी कॉन्ट्रल साइज आपकी डिक्रीज होगी. समझ क्यों ऐसा हो रहा था पीरियड में? लेता हूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. तो लिथियम का एटॉमिक नंबर आप देख रहे हो कि 3, सोडियम का, पोटेशियम इंक्रीज हो रहे थे, है ना. नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे थे और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहा था. नंबर ऑफ शेल्स का इफेक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो गया. इसी वजह से इस केस में जो साइज थी वो इंक्रीज हो गई. लेकिन इस केस में नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट है. ठीक है. नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, और जब आउटर मोस्ट न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, जो साइज होगी वो क्या होगी? डिक्रीज होगी. है ना. क्लियर? यस. ओके. एक और. आरबीआई का मतलब तो पता ही होगा, रामबाण इलाज. ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन नोट. आर बिगर comparison to other elements. अदर एलिमेंट्स के कंपैरिजन में जो नंबर 3 के बारे में डिस्कस कर रहा था, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन. ठीक है. तो अगर आपको कहा जाए अरेंज क्वेश्चन, अरेंज them according to increasing size of atom. इसको अरेंज करना है. ठीक है. हाउ कैन यू अरेंज इट? ओ, साउंड मेरी जा रही है? Yes or no? Now it is clear.
Okay, so my question is that according to decreasing size of atom, you have to arrange according to the decreasing size of the atom. Is it audible? आवाज मेरी जा रही है? हाँ, क्लियर नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करें। जल्दी यार, 2 मिनट का आंसर है। वीडियो नहीं आ रहा है। अब जा रहा है? नहीं, नहीं आ रहा। अब जा रहा है? नहीं, ऐसे हो सकता है। ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। अब जा रहा है? नहीं, क्या जा रहा है? मेरा आवाज भी नहीं आ रहा है अच्छे से। अब आवाज क्लियर है लेकिन वीडियो नहीं आ रहा। यार वीडियो नहीं दिख रहा है। आवाज भी नहीं क्लियर है। वीडियो आया, आवाज क्या? आवाज नहीं सही आ रहा। करो करो, क्वेश्चन करो, वीडियो दिख रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व इट। एज इट करेक्ट है। पढ़ाना है। जीवन तुम ठीक है, क्या समझना क्या बताया था? टू राइट, ठीक है, टू राइट नहीं। अब क्लियर गया? नाउ
अब क्लियर? नो नो, वेट 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 वेट, ये बोर्ड दिख रहा है? नहीं, ये बोर्ड भी नहीं दिख रहा। अब दिखा? ब्लैक स्क्रीन। अब नो 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 नो, नहीं दिख रहा।